Okay, this is video lecture 3 of power electronics. Okay, we will start in this lecture the second part of our course, which is converters or AC to DC converters or rectifiers. So, first of all, I have written some points or contents of this second part. We will discuss single phase, half wave, and full wave rectifiers, resistive and inductive loads, and we will study uncontrolled, semi-controlled, and fully controlled rectification. Three-phase rectifiers, uncontrolled, semi-controlled, and fully controlled. Then we will study 6 pulse, 12 pulse, and 24 pulse rectification, and we will study PWM converters. These are the contents of this AC to DC converters or rectifiers. Okay, what is naturally commutative converter? A naturally commutative converter basically transfers or convert energy both from AC to DC and also from DC to AC. AC to DC conversion is called rectification and DC to AC conversion is called inversion. So what is uncontrolled, half controlled or semi-controlled or fully controlled converters? This is basically the summary of uncontrolled, semi-controlled and fully controlled converter. Uncontrolled converter contains diodes only, and it converts power from AC to DC only, and output DC depends only on the magnitude of input AC. So that's why it is uncontrolled. Why we call it uncontrolled? Because we can either turn a diode on or we can turn it off. So we don't have any control option in for a diode. We can for a positive cycle we can turn a diode on, and for a negative cycle we can turn a diode off. So this is the only control we have. So in between a cycle we don't have a control option to change the magnitude of output DC voltage. So that's why it is called uncontrolled converter. What is a half controlled or semi-controlled converter? These circuits contain both diode and thyristor. So there will be thyristors in these circuits. It converts power from AC to DC only. Output DC can be achieved by varying the firing angle of thyristors. So since there are thyristors in semi-controlled converters, so we can change the output voltage by changing the firing angle of thyristor. We will see this in next topic. And semi-controlled converters are cheaper than fully controlled because there are less thyristors in semi-controlled. And what is a fully controlled thyristors? Fully controlled converters are basically consist of thyristors only. They convert power from AC to DC rectification, and there is some part of DC to AC conversion or inversion in this uh, in this converter zone. And what is different in fully controlled? The output voltage is determined by the firing angle of thyristor. So we will see that how a fully controlled converter can have its output voltage, which can be controlled by the firing angle of the thyristor. Before starting our converters, first we will determine the waveform of a thyristor supplying inductive load. So what will happen when a thyristor is connected with an input supply and the load contains an inductive part or inductor? So what will happen in this case? First of all, you can see in this waveform that we have drawn a sinusoidal waveform, which is the input waveform. This you can see the slight dotted version of sinusoidal waveform, and we have drawn the output load voltage. This output load voltage on top of this input dotted waveform. So what will happen when during the positive cycle? This is the positive cycle of sine waveform. At a certain angle, we will fire the thyristor. Firing the thyristor means we will apply the pulse at the gate. So as soon as you will supply the pulse at the gate, the thyristor will turn on. The thyristor will turn on, and there will be voltage at the output, that is load voltage or VL.
So as soon as the positive cycle lasts here up to here, as soon as the positive cycle of the sine waveform ends, this thyristor will keep on conducting. Why it will keep on conducting? Because the inductive load has magnetic energy stored in it, and inductor basically resists a sudden change in current. So you cannot uh, uh, turn the current or to zero uh, as soon as the positive cycle ends. So this inductive nature of the load basically will keep the current flowing. You can see this waveform here. This is the current waveform. So due to this inductive nature of the load, current will keep on flowing even after the positive cycle, and at a certain angle, and the current will, when this inductive magnetic energy is dissipated or consumed, then the current will turn off and the voltage thyristor will turn off. And this same thing happens in next cycle. So the next sine wave cycle starts from here. So you can see in the next cycle, the same thing happens again. At this angle, the thyristor is fired. And when the positive cycle ends, this is the positive cycle of next waveform, next cycle of the waveform. As soon as the positive cycle ends, the same thing happens again. The thyristor does not turn off suddenly, and the load current keeps on flowing for some time, and then the thyristor is turned off and load current is turned off. So this inductive nature will tell you that we cannot have a DC voltage, pure DC voltage, or rectified DC voltage, because there is a voltage reversal in this case. And when thyristor is supplying a negative inductive load, there is a voltage reversal in this waveform. So this part of the waveform is not required for rectification. So in order to solve this problem, we will go to the next circuit. So next circuit basically has, what is the heading of the next circuit? Heading of the next circuit is commutating or freewheeling diode. So what we will do, we will add you can see the diagram of last circuit. This is the diagram of this circuit. Now what we will do in this circuit, we will add a diode here in inverse state or with the cathode on upward state. Okay? So what will happen now? We will analyze the waveforms, and we will see that the current basically, the voltage reversal will basically eliminate in this case. So we will analyze this circuit with each interval. So describe various intervals of the waveform. First of all, you can see the first waveform here. The first waveform here, there is a dotted sine wave, which is the input voltage. This input voltage, which we have supplied to this circuit, and the on this input voltage we have drawn the load voltage, which is the load voltage. Okay. So what will happen now? During the positive cycle, at a certain angle, we will fire the thyristor. Firing the thyristor means we will supply the gate pulse to the thyristor. So when the thyristor is fired, uh, this thyristor turns on and load voltage appears here. So this part of the load voltage appears when the thyristor is off. Now what happens when the positive cycle ends? The positive cycle ends here. So as soon as the positive cycle ends, the magnetic energy stored in the inductor will turn this diode on. So instead of the last waveform, when basically the inductive nature of the load basically keeps the current flowing even during the negative cycle, and this voltage basically reverses. So in this case, instead of keeping the thyristor on for the negative cycle, this the magnetic energy stored in the inductor will turn this diode on. So during the negative cycle, this diode turns on, and you can see in this waveform that now we can go to the thyristor current and diode current waveforms.
This is the thyristor current waveform, and you can see this waveform exists starting from when the thyristor is fired. So starting from that point during the positive cycle, as soon as the positive cycle, you can see I have drawn a dotted line here. So as soon as the positive cycle ends, the thyristor current uh, basically uh, stops here when the positive cycle ends. And what happens in the diode? In diode, as soon as the negative cycle starts, so the negative cycle of the waveform is conducted by the diode. So as soon as the negative cycle of the input waveform comes, in negative cycle, this diode turns on, and basically this current to the load is supplied by the diode. So we can say the in positive cycle the thyristor is on, and in negative cycle the diode is on. And what will happen, we can add these two waveforms. Basically what we can do is add these two waveforms. You can add these two waveforms to get the load current. Adding these two waveforms, you can geometrically add these two and you will get this waveform. What this waveform is doing, that during the positive cycle the thyristor current is here, and during the negative cycle the diode current is there. So the sum of these two currents will be the load current, and load current will be continuously supplied by the thyristor and diode. And what is this waveform Vt or thyristor voltage? So what will be the voltage across the thyristor? You can say when the thyristor is on, when this thyristor is on, there will be no voltage across the thyristor. You can say this Vt or thyristor voltage will be the complement of thyristor current. Complement of thyristor current means when there will be a waveform of current or current flowing during that interval, the thyristor voltage will be 0. And when the thyristor is off, you can say in this region at start and during negative cycle. When thyristor is off, in that portion until the thyristor is fired again, you can say up to this point when the thyristor is fired again next cycle, up to here up to here you can see this thyristor voltage will appear across the thyristor. So this thyristor voltage waveform will be the complement of thyristor current. Complement of thyristor current means when there is current flowing through thyristor, in that portion the thyristor voltage will be 0, and when thyristor is off, during that voltage the input voltage will appear across the thyristor. Okay. अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो पल्स नंबर की डेफिनेशन है और ये वाला जो लिखा हुआ है, इसको मैंने दोबारा टाइप कर दिया अगले पेज पे। ये आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। ये मैंने अपने लिए नोट्स में लिखा हुआ था, तो इसको मैंने ना अगले पेज पे टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो एंड में लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको स्किप कर देना, ये ऐसी हेडिंग अगले बार में लिखी है। तो मैंने इस चीज़ को टाइप कर दिया, ये पल्स नंबर की डेफिनेशन है। पल्स नंबर की डेफिनेशन इसको मैंने आगे टाइप कर दिया, और ये जो कमेंट लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको भी मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, करंट थ्रू कॉम्यूटेटिंग और फ्री व्हीलिंग डायोड। कॉम्यूटेटिंग और फ्री व्हीलिंग डायोड किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, ये जो डायोड लगा हुआ है इसको कॉम्यूटेटिंग और फ्री व्हीलिंग। और कॉम्यूटेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, ये उसको कॉम्यूटेट कर रहा है, उसको फ्री व्हीलिंग कर रहा है, बजाय थायरस्टर का वोल्टेज रिवर्स करने के, वो जो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है वो इस डायोड के थ्रू डेसिपेट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्यूटेटिंग और फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। The current through the commutating of freewheeling diode is maintained during off period of main power device, that is thyristor, by the energy stored in the magnetic field of the load inductor. Means के जो डायोड है, फ्रीव्हीलिंग डायोड है, जैसे ही थायरिस्टर ऑफ होगा ना, यहाँ पे जैसे ही थायरिस्टर यहाँ पे ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो उस वक्त जो है डायोड जो है वो करंट मेंटेन रखेगा, और आपकी जो लोड का करंट है उसके अंदर ये जो डायोड की वजह से करंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो रहेगा, ठीक। अच्छा, और ये क्यों हो रहा है? ये इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक
एनर्जी है उसकी वजह से हो रहा है। तो इंडक्टर जो है उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी जो है वो इस डायोड में से डेसिपेट हो जाएगी, ठीक है, और लोड करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। अच्छा, उसके बाद ये पल्स नंबर की डेफिनेशन है जो उधर लिखी हुई है, बहुत छोटी करके लिखी हुई थी ऊपर, ये जो है ये पल्स नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैंने टाइप कर दिया। अच्छा, पल्स नंबर क्या होता है, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, pulse number converters are often described by their pulse number, which is the number of discrete switching operations involving load transfer or commutation between individual diodes and thyristors during the period covered by one complete cycle of AC input voltage waveform. Basically, pulse number ये होता है कि एक complete cycle जो है ना, यानी ये साइन वेव का एक complete cycle है। इस कंप्लीट साइकिल के अंदर हमारा थायरिस्टर कितनी दफ़ा ऑन हो रहा है और डायोड कितनी दफ़ा ऑन हो रहा है। तो ये जो स्विचिंग ऑपरेशन है ना कि हमने एक दफ़ा थायरिस्टर को फायर किया और फिर पॉजिटिव साइकिल में थायरिस्टर ऑफ हो गया और फिर हमारा डायोड जो है वो ऑन हो गया, तो ये पल्स नंबर होता है। तो पल्स नंबर जो है वो स्विचिंग ऑपरेशन बताएगा कि कितनी दफ़ा डिस्क्रीट टाइम कितनी दफ़ा स्विचिंग हो रही है एक कंप्लीट साइकिल के अंदर डायोड और थायरिस्टर के अंदर जो है जो स्विचिंग या कॉम्बिनेशन हो रही है, वो जो नंबर है ना उसको हम पल्स नंबर कहते हैं, ठीक है। द पल्स नंबर इज देयरफॉर डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेपिटेशन पीरियड ऑफ डीसी वोल्टेज वेवफॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि एक पल्स नंबर जो है, यानी आप ये कह लो ना कि ये एक कंप्लीट साइकिल है, यानी ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना ये एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। तो इस कंप्लीट साइकिल के अगर आप मैंने ये जो हाईलाइट किया है इसके नीचे देख लो कि इसके बाद जो है वो सारी वेव फॉर्म रिपीट होंगी, यानी आप देखो कि जो यहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट हो रही है एक कंप्लीट साइकिल के बाद वही रिपीट हो रही है, ठीक है। इसी तरह आप ये कह लो कि ये है, उसके बाद फिर ये रिपीट हो रही है, इसी तरह ये है, ये आगे रिपीट हो रहा है, ये आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो है पल्स नंबर जो है वो रेपिटेशन पीरियड बताएगा वेव फॉर्म का, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कितने स्विचिंग ऑपरेशन है उसके बाद वही रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब आगे जो है ना ये इसने ये इस पेज के ऊपर वही चीज़ें समझाई हुई हैं, हम लोग ये कवर कर चुके हैं, इसको मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। अफेक्ट ऑफ कॉम्यूटेटिंग ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। यानी जो मैं आपको लास्ट पेज के ऊपर समझा चुका हूँ ना, इस पेज के ऊपर उसने ये लेक्चर में मैंने ना एक एक वेव फॉर्म को बना के उसे हाईलाइट करके तो समझाया हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं। यानी मैं आपको बता तो चुका हूँ लेकिन इसको भी दोबारा पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो ये जो वीएल वाली वेव फॉर्म है इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म इज कंडक्टेड बाय डायोड, सो इट अपीयर्स इन द डायोड करंट, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो नेगेटिव पार्ट होगा ना, ये ऊपर देख लो आप, ये जो नेगेटिव साइकिल है ये वाला, ये डायोड कंडक्ट कर रहा है इसलिए ये डायोड में जो है वो अपीयर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बट द लोड करंट आई एल इज मेंटेन ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ड्यू टू डायोड कंडक्शन। तो क्योंकि डायोड नेगेटिव साइकिल में कंडक्ट कर रहा है इसलिए लोड करंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है। ये हमारी लोड करंट की वेव फॉर्म दोबारा ड्रॉ की हुई है, ठीक है। और करंट थ्रू थायरिस्टर फ्लो ओनली व्हेन इट इज ऑन, सो आई टी एग्जिस्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म, ठीक है। तो थायरिस्टर के अंदर आपने देखा है कि सिर्फ उसी दौरान करंट फ्लो करेगा, ये थायरिस्टर करंट है जब थायरिस्टर ऑन होगा, ठीक है। तो जैसे ही थायरिस्टर ऑफ हुआ इस पोर्शन के अंदर जो है जीरो है करंट, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट साइकिल में जब दोबारा थायरिस्टर करंट फायर करेगा तो उस वक्त थायरिस्टर का करंट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ये एक चीज़ जरा ध्यान से आप देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना थायरिस्टर करंट का, अगर इसको ये जो लाइन है ऊपर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है इसको अगर आप गौर से देखो, ये करंट जो है ना ये नेक्स्ट साइकिल है साइन वेव फॉर्म का उसके स्टार्ट से नहीं है, नेक्स्ट साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने यानी एक चीज ये देखनी है कि थायरिस्टर को जब आपने फायर किया ना यहाँ पे पहले साइकिल में फायर किया था, तो ये इनपुट वेवफॉर्म के थोड़ी देर बाद हम यानी अल्फा एंगल के ऊपर आपने फायर किया था, तो अगले साइकिल के ऊपर भी जो है जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना साइकिल, तो उसमें थोड़ा सा गैप आएगा अल्फा का, यानी आप अगले साइकिल में फिर आपको जो है वो अल्फा एंगल पे ही फायर करोगे, इसलिए ये जो थायरिस्टर की अगला साइकिल शुरू हो रहा है ना, ये वाला जो थायरिस्टर करंट है ये इसके नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने से थोड़ा सा बाद आता है, जिस तरह पहले साइकिल के अंदर आता है ना, जिस तरह आप ये देख लो पहले साइकिल में ये गैप आता है थोड़ा सा, क्योंकि हमने उसको अल्फा एंगल पर फायर किया है।
इसी तरह ये सेकंड साइकिल के अंदर भी ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई हुई है, ये वाली मैंने ना डॉटेड लाइन लगाई हुई है, ये बताने के लिए लगाई हुई है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है थायरिस्टर करंट, ना कि ये जो ये यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है ना सेकंड, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा सा आगे स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए आप लोग भी अगर ये वेव फॉर्म पेपर पर ड्रा करोगे ना, तो आप ये डॉटेड लाइन लगा सकते हो। आप अगर गौर से देखो तो इस पोर्शन में मैंने ये डॉटेड, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन लगाई हुई है, और फिर ये पहला साइकिल ख़त्म होता है, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन लगाई हुई है। उसके बाद ये वाली डॉटेड लाइन है जब अगला थायरिस्टर फायर हो रहा है, फिर ये डॉटेड लाइन लगाई हुई है जो कि दूसरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, दूसरे साइकिल का पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये आपको हेल्प करेगी, इससे इंटरवल बन जाएंगे आपके पास, यानी ये पहला इंटरवल है छोटा सा, उसके बाद ये पॉजिटिव साइकिल का इंटरवल है, उसके बाद ये नेगेटिव साइकिल का इंटरवल है, फिर जो है जहाँ पे नेक्स्ट टाइम थायरिस्टर फायर हो रहा है वो इंटरवल है, ठीक है। तो ये फिर नेक्स्ट साइकिल का पॉजिटिव साइकिल जब खत्म हो रहा है वो एक इंटरवल है ये वाला, उसके बाद जो है नेक्स्ट साइकिल का नेगेटिव साइकिल। तो ये इंटरवल बना के इससे आपकी वेवफॉर्म जरा नीट बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो हम इस पेज के ऊपर थे, तो यहाँ पे वो वेवफॉर्म दोबारा समझा रहा है, ठीक है। ये थायरिस्टर करंट हो गया। अच्छा, अब ये बात वो समझाई हुई है, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, वीटी वाली वेवफॉर्म जो ऊपर हमने की थी ना, ये वाली वेवफॉर्म जो मैंने समझाई थी, ये नीचे ना लिख के समझाया हुआ, ठीक है। Voltage across thyristor VT is sinusoidal waveform complementing IT. Thyristor current means voltage decreases with increase in IT. In fact, VT is zero when IT is fine. ठीक है, यानी जब करंट फ्लो कर रहा होगा थायरिस्टर के अंदर, जब थायरिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, उस वक्त अगर आप नीचे देखो तो वोल्टेज जीरो, ठीक है। और जब थायरिस्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे थायरिस्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इस दौरान जो है वोल्टेज अपीयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाया हुआ उसने। अच्छा जी, ये जो है इसको स्किप कर देना, ये मैंने ऐसे अपने लिए टॉपिक्स लिखे हुए थे कि इस लेक्चर में क्या क्या है, ठीक है। तो इसको स्किप कर देना, ये बाकी वेव फॉर्म जो है। अच्छा, अगर आप लोगों को एग्जाम में या किसी क्विज वगैरह में होता है तो आप एक एक वेव फॉर्म को ले बना के, जिस तरह इस पेज के ऊपर किया हुआ है ना कि एक वेव फॉर्म बना के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर दूसरी वेव फॉर्म बना के इस तरह हाईलाइटर करके उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर उस पर कमेंट लिखा हुआ है कि क्यों ये हो रहा है, ठीक है। फिर ये वाली वेव फॉर्म बना के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाओ। अच्छा, नेक्स्ट है जी सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर, और ये डायोड या अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड हमने कहा था ना कि अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर्स में डायोड सिर्फ सिर्फ डायोड्स होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसको अनकंट्रोल्ड क्यों कहते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम देख लो, इसमें दो डायोड्स हैं, RL जो है इसका लोड है, और ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है इसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये है कि एक की तरफ गौर से देखना, ये जो वेव फॉर्म है ना, इसमें ये येलो कलर से मैंने किया हुआ है ना, ये साइन वेव फॉर्म बनी हुई है, यानी ये इनपुट वेव फॉर्म है। तो आप अगर यहाँ पे देखो, ये VS एंड VL लिखा हुआ है। VS एंड VL का मतलब है कि पहले हमने डॉटेड से इनपुट वेव फॉर्म बनाई है, उसके ऊपर ही हमने फिर ये सॉलिड करके लोड वोल्टेज बना दिया, ठीक है। तो आप ये जो मैंने येलो कलर से किया हुआ है, ये हमारी VS है, यानी जो इनपुट वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, और ये जो ऊपर सॉलिड नजर आ रहा है ना आपको, ये लोड वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा, तो इस सर्किट में क्या हो रहा है, बेसिकली इस सर्किट में ये हो रहा है कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान जब, एक मिनट, जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो, एक मिनट हम अगले पेज पे आ रहे हैं, एक मिनट। अच्छा, जब पॉजिटिव साइकिल है तो डायोड D1 जो है ये कंडक्ट कर रहा है, और जब डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव साइकिल की जो करंट है वो इसमें से डायोड D1 में करंट फ्लो कर रहा है और अगले पॉजिटिव साइकिल में फ्लो कर रहा है। और जब नेगेटिव साइकिल होगा तो उस वक्त ये सेकंड डायोड जो है ये कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड डायोड जब कंडक्ट कर रहा है तो नेगेटिव साइकिल का जो करंट है वो इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, अगर इन दोनों को ऐड कर लो तो आपकी लोड करंट बन जाएगी। ये लोड करंट जो है, मैं तीनों को ऐसे हाईलाइट कर देख लो कि ये इसको ये और ये ऐड हो जाएगी, तो लोड करंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली आपके पास लोड करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे लोड को कॉन्टीन्यूस करंट मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड ऑन है और नेगेटिव साइकिल में ये डायोड ऑन है, ठीक है। अच्छा, अब इसे अनकंट्रोल्ड इसलिए कहते हैं
कि हमारे पास यही ऑप्शन है ना, हम यही कर सकते हैं कि पॉजिटिव साइकिल में इस डायोड को ऑन कर दें, नेगेटिव साइकिल में इस डायोड को ऑन कर दें, और तो कुछ नहीं कर सकते ना हम, यानी और कंट्रोल ऑप्शन नहीं है। जो थायरिस्टर होता है, जो थायरिस्टर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ वापस जाके, उसमें हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम उसको किस जगह पे फायर करेंगे। जब हम उसे फायर करेंगे तभी वो ऑन होगा, और तभी ये वेवफॉर्म, इस वेवफॉर्म को किस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमने स्टार्ट करना है। अगर आप पिछले सर्किट में देखो तो उसमें ये देखो, मैंने ये जो थायरिस्टर का अल्फा जहाँ पे फायर हो रहा है, इसको मैंने जरा आगे करके बनाया था। इसका मतलब है ये तकरीबन π/2 पे तकरीबन नहीं, π/4 तकरीबन पे π/4 के ऊपर जो है ये थायरिस्टर फायर हुआ था। इसका मतलब है कि थायरिस्टर में फायरिंग एंगल जो है वो, उसकी वजह से हमारे पास कंट्रोल ऑप्शन होती है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। डायोड के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती। डायोड के अंदर जो है, अब आप वापस अपने सर्किट पे चले जाएं, डायोड के अंदर हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि पॉजिटिव साइकिल में डायोड ऑन हो रहा है तो यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव साइकिल में करंट फ्लो करेगा, और नेगेटिव साइकिल में दूसरा डायोड हो रहा है। इससे ज़्यादा हम कंट्रोल ऑप्शन नहीं होती हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये लोड करंट मैंने बता दिया, वो इन दोनों का सम होगा। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे जो डायोड का वोल्टेज है ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह थायरिस्टर में है कि जब डायोड ऑफ होगा ना, यहाँ पे ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके बनाया हुआ है, जैसे ही डायोड ऑफ होगा उस दौरान जो वोल्टेज है ना इनपुट का, वो डायोड के क्रॉस जो है वो अ, ये वोल्टेज जो है ना, ये पीक इनवर्स वोल्टेज जो है ये 2 VM के क्रॉस इक्वल होगा। यानी जितना जितना वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज की पीक है ना, उससे ट्वाइस वोल्टेज जो है वो डायोड के क्रॉस अपीयर होगा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वेव फॉर्म है ये आई एस की है, सप्लाई करंट ये जो आई एस है, ये वाला आई एस है। तो ये जो सर्किट है ना, इसकी सप्लाई करंट को अगर हम ड्रॉ करें तो ये एक नॉन साइनोसाइडल किस्म की एसी वेव फॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे सर्किट का मीन लोड वोल्टेज कितना होगा। मीन लोड वोल्टेज मीन्स ये जो लोड वोल्टेज है उसकी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अच्छा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर, इसको प्रूफ भी किया हुआ है कि ये कैसे आती है। सबसे पहले आप कह लो 1/π जो है, 1/π का मतलब है एक कंप्लीट साइकिल, जो टाइम पीरियड है एक कंप्लीट साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल जो है उसका, ठीक है। 2π होता है एक कंडक्टिंग पीरियड जो है वो पाई है, 1/π। अच्छा, और उसके बाद वी बार साइन ओमेगा टी जो है, जो इनपुट वेवफॉर्म है उसको हम कंडक्ट कर, उसको इंटीग्रेट कर लें और 0 से लेकर पाई तक उसे इंटीग्रेट कर लें, तो ये 2V/π जो है वो हमारे पास आंसर आता है। और ये कैसे आता है, अगर आप इसे इंटीग्रेट कर लो, 1/π साइन ओमेगा टी का जो है वो इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, वी बार कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस को भी बाहर ले आओ, तो जब उसने 1/π लिख के -V बार अंदर रखा हुआ है, उसके बाद जब लिमिट्स पुट करेंगे कॉस माइनस कॉस पाई, एक चीज़ देख लो कि ये वाला जो माइनस है ना, जो माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, इसको बाहर निकाल लिया। और कॉस पाई जो है, कॉस 180 जो है वो -1 होता है। उसके बाद लिमिट का जो माइनस है ये, उसके बाद कॉस 0 जो है वो 1 होता है, ठीक है। -1 -2 हो जाएगा, और ये जो बाहर वाला माइनस था उसके साथ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वी मीन जो है वो 2V/π आ जाएगा, ठीक है। 1/π हमने पहले बाहर निकाला था, वी बार बाहर था, तो 2V/π वो हो गया, और ये 2 अंदर से आ गया +2, ठीक है। तो ये प्रूव किया होगा कि ये 2V/π जो है वो मीन लोड वोल्टेज आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर, ये थायरिस्टर वाला सर्किट है और फुली कंट्रोल्ड है। फुली कंट्रोल्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें जो दोनों थायरिस्टर है ना, उसके फायरिंग एंगल हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस वजह से इसको फुली कंट्रोल कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल लास्ट सर्किट की तरह उसमें दो डायोड लगे हुए थे, ठीक है। आप पहले ये देख लो कि ये वेव फॉर्म डॉटेड थी ना, ये साइन वेव फॉर्म बनी हुई है डॉटेड वाली, ठीक है। और ये V2 बना हुआ है, सेंटर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। V1 ये वाला वोल्टेज V1 है, और ये वाला वोल्टेज V2 है, जो कि ये V2 शो किया हुआ है, ये V2 शो किया हुआ है, ये उल्टी जो वेव फॉर्म। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एग्जैक्टली वही होगा कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान जो है हम थायरिस्टर T1 को फायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थायरिस्टर T1 को फायर करेंगे, थायरिस्टर T1 फायर होगा
तो थायरिस्टर T1 का करंट फ्लो होना यहाँ से शुरू होगा। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल ख़त्म होता है, लेकिन इंडक्टिव नेचर की वजह से जब तक अगला थायरिस्टर फायर नहीं होता नेगेटिव साइकिल में, यानी ये वाला जो दूसरा यहाँ पे दूसरा थायरिस्टर फायर हो रहा है, ठीक है, T2, लेकिन थोड़ी देर तक जो है थायरिस्टर T1 जो है कंडक्ट करता रहेगा। जैसे ही थायरिस्टर T2 फायर होगा ना, ये चीज़ ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंडक्टिव नेचर की वजह से कुछ देर तक जैसे ही नेगेटिव साइकिल खत्म, ये पॉजिटिव साइकिल खत्म होता है, तो फौरन करंट ऑफ नहीं होता थायरिस्टर T1 में से, थोड़ी देर तक करंट फ्लो करता रहता है। तो जैसे ही थायरिस्टर T2 यहाँ पे फायर होगा, तो उस वक्त जो है थायरिस्टर T2 का करंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यानी इसको अगर हमने एक्सप्लेन करना है ना, वो इस तरह है कि ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है, यहाँ पे ये पाई तक फ्लो कर रहा है, ठीक है, और फिर ये जो गैप आ रहा है ना, ये पाई प्लस अल्फा है, ठीक है। तो ये हम आगे लिमिट्स में भी देखेंगे। तो फ्रॉम अल्फा टू पाई प्लस अल्फा जो है थायरिस्टर T1 जो है वो कंडक्ट करेगा, और पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक जो है वो थायरिस्टर T2 जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह जिस तरह लास्ट सर्किट में किया था कि इन दोनों वेव फॉर्म्स को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास लोड करंट की वेव फॉर्म आ जाएगी, यानी एक साइकिल में जो है वो थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है और एक दूसरे साइकिल में थायरिस्टर T2 कर रहा है, और इन दोनों वेव फॉर्म का जो सम है वो लोड करंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये VT1 जो है थायरिस्टर T1 के क्रॉस वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज वेव फॉर्म पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जैसे ही जब थायरिस्टर T1 ऑन होगा ना, उस दौरान उसका जो वोल्टेज है वो उस दौरान उसका वोल्टेज 0 होगा, और जब वो ऑफ होगा थायरिस्टर, जब अभी थायरिस्टर ऑफ है, उस यानी उसको वेव फॉर्म उसे कॉम्प्लीमेंट करेगी तो इस रीजन में, और जैसे ये ऑफ है थायरिस्टर T1, उस रीजन में जो वोल्टेज है वो थायरिस्टर के क्रॉस अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये बात हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। और बिल्कुल पिछले सर्किट की तरह ये जो सर्किट है, ये इसकी सप्लाई करंट जो है ये नॉन साइनोसाइडल इस तरह की होगी, इसी वेव फॉर्म, यानी ये जो सप्लाई करंट है जो कि ड्रॉ कर रहा है ये सर्किट, ये इस तरह का होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मीन वोल्टेज जो है वो मीन वोल्टेज जो है ये कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, इसमें भी देखो 1/पाई अल्फा से पाई प्लस अल्फा, अल्फा से पाई प्लस अल्फा जो है ये इसने शो किया हुआ कि ये अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक एक साइकिल है, ठीक है। अच्छा, और वी बार साइन ओमेगा टी उसको इंटीग्रेट किया है, और ये 2V कॉज अल्फा ओवर पाई आता है, ऊपर इंटीग्रेशन करके दिखा दिया कि अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो उसने सबसे पहले ये किया कि ये V/पाई जो है इसको बाहर कर लिया, साइन ओमेगा टी का जो है माइनस कॉज ओमेगा टी, माइनस भी बाहर निकाल लिया, यानी इसका इंटीग्रल जो है वो माइनस कॉज ओमेगा टी आता है, तो माइनस भी बाहर निकाल लिया, तो कॉज ओमेगा टी उसकी लिमिट जो है ये अल्फा और पाई प्लस अल्फा होंगी, ठीक है। कॉस पाई प्लस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, जब लिमिट्स पुट करेंगे, और ये जो कॉस पाई प्लस अल्फा है ये आइडेंटिटी है, ये इक्वल होता है माइनस कॉस अल्फा के, तो ये माइनस कॉस अल्फा बन जाएगा, और ये भी माइनस कॉस अल्फा, तो ये -2 कॉस अल्फा बन जाएगा, और ये माइनस और बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2V कॉस अल्फा ओवर पाई। तो ये जो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है ऊपर, इसको प्रूव करके बताया हुआ है कि ये 2V कॉस अल्फा ओवर पाई कैसे आता है, ठीक है। तो ये मीन लोड वोल्टेज होगा। मीन लोड वोल्टेज का मतलब है कि ये जो वेव फॉर्म बनी हुई है ना ये वाली, इसके एक कंप्लीट साइकिल का, यानी एक कंप्लीट साइकिल जो है ना, उसको हमने मैथमेटिकली शो किया कि मीन लोड वोल्टेज जो मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये ये सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर था, और इसको फुली कंट्रोल्ड इसलिए कह रहे हैं कि इसमें थायरिस्टर से, ठीक है। और इसके अल्फा एंगल को हम चेंज करके इसकी आउटपुट मीन वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप इधर देख लो कि यहाँ पे ये जो इसकी मीन वोल्टेज है उसके अंदर अल्फा आता है ना, तो हम जो लोग जो हैं हम एक तो V को चेंज कर सकते हैं, और एक हम अल्फा को चेंज करके हम मीन वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सर्किट बेशक हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन सिंगल फेज जो है सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है।
अच्छा, ये रेक्टिफायर बड़ा सिंपल सा है, जो शायद आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया होगा, कि एक डायोड लगा हुआ सिर्फ, ठीक है, और रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है, और एक डायोड जो है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम ये कर सकते हैं कि ये अगर उसकी वी एस हमारी इनपुट वेव फॉर्म है, तो डायोड पॉजिटिव साइकिल के दौरान जो है वो कंडक्ट करेगा, ऑन हो जाएगा, और पॉजिटिव साइकिल के दौरान उसकी करंट फ्लो करेगी, नेगेटिव साइकिल के दौरान जो है वो डायोड ऑफ हो जाएगा। तो ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव का मतलब है सिर्फ ये हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा, बाकी हाफ वेव जो है वो कट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि डायोड उसमें कंडक्ट नहीं कर रहा। पहली वेव फॉर्म जो है वो लोड वोल्टेज की है, ये लोड वोल्टेज की है। दूसरी वेव फॉर्म लोड करंट की है, ये जो करंट है, ये वाली करंट। तीसरी वेव फॉर्म जो है ना, ये वीडी, ये डायोड वोल्टेज की है। तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये भी उसी तरह है कि जब डायोड ऑफ होगा ना, यहाँ पे जब डायोड ऑफ हो रहा है उस दौरान जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे डायोड के क्रॉस अपीयर हो जाएगा, जैसे हम पहले करते रहे हैं कि जब थायरिस्टर ऑफ होता था उस वक्त जो वोल्टेज है वो उसे यानी कॉम्प्लीमेंट होगा डायोड करंट का। जब डायोड ऑन है उस वक्त जो वोल्टेज है, जब डायोड ऑफ है उस वक्त जो वोल्टेज है वो उसके क्रॉस अपीयर हो जाएगा, जब ऑन है उस वक्त वोल्टेज जीरो होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट करेगा अपनी करंट वाली वेव फॉर्म को, ठीक है। तो ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर था। और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि रेक्टिफायर के पैरामीटर्स, रेक्टिफायर की परफॉर्मेंस को शो करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अब मैं ये जल्दी से पढ़ देता हूँ आपको कि एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट लोड वोल्टेज, इसको वीडीसी कहेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट लोड करंट, उसको आईडीसी कहेंगे। और डीसी पावर जो है वो पावर वोल्टेज इंटू करंट होती है, तो डीसी पावर जो है हमारे कन्वर्टर की वो वीडीसी इंटू आईडीसी होगी। इसी तरह आर एम एस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज जो है वो वी आर एम एस अगर है, और आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट जो है वो अगर आई आर एम एस है, तो हमारी जो ए सी पावर होगी वो वी आर एम एस ओवर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगी, ठीक है। ये एसी पावर होगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आते हैं कि एफिशिएंसी या रेक्टिफिकेशन रेशियो जो है रेक्टिफायर की वो क्या होती है, डीसी पावर ओवर एसी पावर। डीसी पावर ओवर एसी पावर का मतलब है कि इनपुट हमारे पास बेसिकली इनपुट तो एसी है ना, तो एसी पावर का कितना पोर्शन जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रेशियो जो है ये एफिशिएंसी को शो करेगी। तो एफिशिएंसी विल बी द टी डीसी ओवर टी एसी, ठीक है। ये रेक्टिफिकेशन रेशियो है या एफिशिएंसी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफेक्टिव ये वी ए सी जो है वो उसने बताया हुआ है कि द आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंसिडर एज बीइंग कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक डीसी कंपोनेंट होता है और एक एसी कंपोनेंट होता है। तो वी ए सी जो है वो इक्वल होगा वी आर एम एस स्केयर माइनस वी डी सी स्केयर का अंडर रूट। और इससे हम फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हैं। फॉर्म फैक्टर जो है वो वी आर एम एस ओवर वी डी सी के इक्वल है, कि कितनी जो आउटपुट वोल्टेज की ये जो फॉर्म फैक्टर है, ये आउटपुट वोल्टेज की शेप को शो करेगा कि कितना आर एम एस कॉम्पोनेंट है और कितना डीसी कॉम्पोनेंट है। रिपल फैक्टर जो है, रिपल कंटेंट कितना होगा वेव फॉर्म में, वो होगा वी ए सी और वी डी सी, ठीक है। अच्छा, और रिपल फैक्टर जो है, अब ये जो रिपल फैक्टर है ना वी ए सी और वी डी सी, हमने वी ए सी ऊपर ये निकाला हुआ था, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये वाली वी ए सी की वैल्यू जो है वो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो उससे हमारे पास रिपल फैक्टर जो है वो इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। यानी हम वी ए सी, ये वी ए सी की वैल्यू है ना, यहाँ पे ये वी ए सी की वैल्यू पुट करेंगे, और ये जो नीचे वाला वी डी सी है ना, इसका स्केयर लेके ऊपर अंदर अंडर रूट में ले जाएंगे, तो वो ये बन जाएगा वी आर एम एस स्केयर ओवर वी डी सी स्केयर माइनस वी डी सी स्केयर ओवर वी डी सी स्केयर, ये वन हो जाएगा। तो ये जो वी आर एम एस ओवर वी डी सी है इसको हम ऑलरेडी फॉर्म फैक्टर कह चुके हैं। तो ये जो रिपल फैक्टर है ये फॉर्म फैक्टर स्केयर माइनस वन अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूशन से ये फार्मूला बन गया। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, ये फैक्टर होता है डीसी पावर ओवर सप्लाई जो पावर है ना वी एस आई एस जो है, यानी आपका सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट जो है, ये ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है। यहाँ नीचे वी एस आई एस का बताया हुआ है, ये आर एम एस वोल्टेज और आर एम एस करंट है ट्रांसफार्मर सेकेंडरी का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अल्फा फाई एंगल बताया हुआ है। If phi is the angle between the fundamental components of input current and input voltage, then phi is called displacement angle, and displacement factor is defined as, ये displacement factor है cos phi, इसको power factor भी हम कहते हैं। अच्छा,
उसके बाद ये हार्मोनिक फैक्टर है। हार्मोनिक फैक्टर जो है इनपुट करंट का, उसको डिफाइन किया हुआ है आई एस माइनस आई वन, आई एस स्केयर माइनस आई वन स्केयर ओवर आई वन स्केयर अंडर रूट, या इसको सिंप्लीफाई करके इतना लिखा हुआ है आई एस ओवर आई वन होल स्केयर माइनस वन। नीचे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आई वन जो है वो क्या है। आई वन इज द फंडामेंटल आर एम एस कॉम्पोनेंट ऑफ इनपुट करंट, ठीक है। और इनपुट पावर फैक्टर जो है वो आई वन ओवर आई एस इनटू कॉस फाइव के इक्वल होगा, ठीक है। ये इनपुट पावर फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद एक एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर ये जो हमने पिछले परफॉर्मेंस पैरामीटर किए हैं ना, वही पूछे हुए हैं, ठीक है। ये मैं भी करवा देता हूँ आपको जल्दी से कि अच्छा, if the rectifier of figure 2.14a has purely resistive load R, determine the efficiency. A efficiency find करनी है, B form factor, C ripple factor, D transformer utilization factor, E peak inverse voltage PIV of diode D1, ठीक है। ये फिगर है, ये वाली फिगर है, और ये इसकी वेवफॉर्म भी गिवन है, ठीक है। तो इसने पूछा हुआ ये चीज़ें निकालो, एफिशिएंसी निकालो, फॉर्म फैक्टर निकालो, रिपल फैक्टर निकालो, और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, और पीक इनवर्स वोल्टेज निकालो, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालो, हमने एक चीज़ देख लो, हमने सबसे पहले जो निकालना है ना, वो निकालना है एफिशिएंसी, ठीक है। ये एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी देख लो क्या होती है। एफिशिएंसी होती है पी डी सी ओवर पी ए सी, ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए हमें डी सी पावर चाहिए होगी और ए सी पावर चाहिए होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो हम सबसे पहले ये करेंगे, वी डी सी निकालेंगे, क्योंकि पी डी सी निकालना है ना, पी डी सी जो है वो डी सी वोल्टेज और डी सी करंट इंटू डी सी करंट होता है। तो वी डी सी जो है वो 2 VM ओवर पाई होगा, या 0.636 इंटू, 0.636 कैसे आया, 2/पाई जो है वो 0.636 होता है, उसको वी एम जो है वो पीक वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और आई डी सी क्या होता है, आई डी सी जो है वो वी डी सी ओवर आर होता है। तो 0.636 के को आर से डिवाइड कर दो, 0.636 वी एम को आर से डिवाइड कर दिया, तो ये करंट आ गया। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे वी डी सी इंटू आई डी सी ये पी डी सी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आर एम एस, उसके बाद देख लो ए सी, जो ए सी पावर थी वो क्या थी, यानी ये जो ए सी पावर थी वो थी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इसका मतलब है हम वी आर एम एस और आई आर एम एस अब निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी पावर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये वी आर एम एस निकाला हुआ है। वी आर एम एस जो है आप सिंपली कह सकते हो 0.707 जो है वो वी एम होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में या पीछे पढ़ा होगा। और आई आर एम एस जो है वो उसको वी आर एम एस को आर से डिवाइड कर लो तो ये आई आर एम एस आ जाएगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी यहाँ पे उसने पी डी सी निकाल ली। पी डी सी क्या होगा, वी डी सी इंटू आई डी सी, वी डी सी इंटू आई डी सी, ये हो जाएगा 0.666 वी एम स्केयर, 0.666 इंटू वी एम का स्केयर ओवर आर, ठीक है। ये पी डी सी निकाल लिया, और ये पी ए सी आ गया 0.707 इंटू वी एम का स्केयर ओवर आर, ठीक है। ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस से, ठीक है। वी आर एम एस और आई आर एम एस को मल्टीप्लाई कर लिया, उससे पी ए सी आ गया। और उसके बाद जो है वो हमने डिवाइड कर लिया, एफिशिएंसी जो होता है वो पी डी सी और पी ए सी होती है, तो इनको डिवाइड कर लिया, 81% एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर देख लो ऊपर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर होता है वी आर एम एस ओवर वी डी सी। वी आर एम एस और वी डी सी जो है वो कर लेंगे तो फॉर्म फैक्टर आ जाएगा। ये वी आर एम एस है और ये वी डी सी करेंगे तो ये फॉर्म फैक्टर आ जाएगा 1.11, ठीक है। रिपल फैक्टर का फार्मूला क्या था, रिपल फैक्टर का फार्मूला जो था वो ये था, ठीक है। रिपल फैक्टर का एक फार्मूला ये लिखा हुआ था, उसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया था, फॉर्म फैक्टर स्केयर माइनस वन अंडर रूट, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर हम निकाल चुके हैं, ये 1.1 फॉर्म फैक्टर का स्केयर माइनस वन अंडर रूट कर लेंगे तो 0.482 या 48.2% जो है ये रिपल फैक्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, आर एम एस। उसके पार्ट डी में क्या पूछा हुआ आपने, और डी में टी यू एफ पूछा हुआ, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। टी यू एफ का अगर आप फार्मूला देख लो क्या होता है, ये पी डी सी ओवर वी एस आई एस होता है, ठीक है। तो पी डी सी ओवर वी एस आई एस कर लेंगे हम। डीसी पावर के ऊपर हमने निकाली हुई है, ये डीसी पावर जो है वो ये हमने निकाली है, ये पी डी सी इधर से आ जाएगी, और ये जो है
वोल्ट एम्पेयर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी 2 VSIS। ठीक है, वोल्ट एम्पेयर जो है 2 VSIS होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लो कि जो VDC है ना, वो जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो फार्मूला अगर आप गौर से देखो तो उसमें DC पावर ओवर VSIS है। ठीक है, तो DC पावर जो है वो हम कैसे निकालेंगे? DC पावर इस तरह निकालेंगे कि हमने VDC और IDC निकाला हुआ, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा बेसिकली 0.636 VM² ओवर आर। ठीक है, ये आ जाएगा, और नीचे 2 VSIS आएगा, ये 2 VSIS। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो कि VM² और ओवर आर आ रहा है, ये दो दफ़ा VM आ रहा है और आर आ रहा है, तो VM² और VM² और आर कट जाएगा, और बाकी जो है वो ये आ जाएगा 0.66 का स्केयर बचेगा, और नीचे जो है वो 2 इंटू 0.707 इंटू 0.5 बचेगा। इसकी अगर आप रेशो ले लो तो ये 0.5732 या 57.32% आता है। ठीक है, पीक इनवर्स पार्ट ई में पूछा हुआ, पीक इनवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज ऑफ डायोड जो है वो 2 VM है, ये वेव फॉर्म में गिवन है। ये अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर वेव फॉर्म के अंदर जो पीक इनवर्स वोल्टेज है ना, ये गिवन है। ठीक है, ये हमने ऊपर जो एक सर्किट किया उसके अंदर भी था कि डायोड का जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, ये वेव फॉर्म जो है ना, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो डायोड जब ऑन है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है ये 2 VM जो है ये गिवन है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम लिख देंगे the peak in reverse blocking voltage of diode is 2 VM, जो कि ट्वाइस है उसकी पीक वैल्यू की। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर 1 जो है वो ख़त्म हो रहा है, हम इसको फर्दर एलेबोरेट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन लेक्चर में। आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई होगी इस लेक्चर में तो आप ऑनलाइन लेक्चर में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।